What a country India is. Massive, complex, breathtaking, and the diversity in its landscape makes me want to explore its unknown parts and its wonderful, stunning, and beautiful remote villages. While I say that, I also completely understand and realize that for those Indians living in remote villages, India isn't always a smooth sail. A basic right like electricity is often a distant dream in India's remote areas. Did you know that 13% of the Indian population is not grid connected, which means it has no electricity? But one innovation in solar power has created pockets of light and sustainable energy even in the isolated village clusters across India. And the technology that has changed this is called solar microgrids, created by Tata Power Renewable Microgrid Limited. And in this episode, I'm on a journey to meet families, farmers, communities, young rural entrepreneurs, and a group of women tailors whose lives have turned around for the better because they have access to solar microgrids. In the previous episode, I had seen changes that solar rooftops were bringing to individuals and businesses across India. And this time, I continue on this journey to learn more on solar power as was envisioned by Jamshedji Tata. Clean, cheap and abundant power is the basic ingredient for the economic progress of a city, state or country. Tata Power Renewable Microgrid Limited, or TPRMG, a wholly owned subsidiary of Tata Power, was launched in November 2019 to provide clean, affordable, reliable and quality power supply to rural customers of India. Through solar microgrids, TPRMG provides customized solutions to the remote regions that might be cut off from regular electric grids. We have seen that in rural places, while the electrification has happened, however, the reliable power supply remains a challenge. Keeping that objective, the company has been launched, and we are glad to say that today more than 200 villages have been electrified. These 200 villages have more than 20,000 smiling rural customers. So what is a microgrid? A microgrid is a micro-scale grid which operates independently to supply energy from limited numbers of consumers. Each microgrid caters to about 100 to 150 odd consumers. A microgrid primarily uses renewable energy sources like solar PV, biomass, biogas and wind energy, which are really clean sources of energy. Electricity from microgrids costs 20% to 25% cheaper than a diesel generator energy cost for rural micro enterprises. A typical solar microgrid can range from 1 kilowatt to several megawatts. I'm in rural Uttar Pradesh in North India to see exactly how these microgrids work and to catch them in action. In Bijua village, several hutmans didn't receive any electricity supply for 25 years. Now, after repeated failures to access electricity from the state power grid, the installation of the TPRMG microgrid has changed their lives. Deepu and his family have been living in Bijua for over 25 years. Today, they have electricity from a TPRMG. तो दीपू, सबसे पहले तो आपका बहुत ही प्यारा घर है और थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपसे पूछना चाहता था दीपू जी के पैदा भी यहीं इसी घर में हुए थे? हाँ, इसी घर में पैदा हुआ। हमारी उम्र लगभग 25-26 साल हो गई है जी। कभी लाइट वाइट की सुविधा ही नहीं मिली हमको। तो आपका बचपन फिर क्या, आप पेट्रोमैक्स यूज़ करते थे, घास लेट यूज़ करते थे, कैंडल्स क्या? हमारे यहाँ वही डीजल मिलता था 2 लीटर गल्ला पे कार्ड पे लंप में जलाया जाता था। मोमबत्ती वगैरह यही सब जलती है, आंधी पांधी आ जाए तो बुझ जाती है अपने आराम से। इसीलिए दिक्कत बहुत तगड़ी रही है, अंधेरे में ही रहे समझ लो।
ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन ये बताइए कि फिर इतने सालों बाद आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई। शाम के टाइम लगाई थे, हम खाना वाना खा रहे थे अपने यहाँ, लाइट का उजेरा आया, बढ़िया लगा। सडनली इलेक्ट्रिसिटी आ गई घर में। हाँ, बढ़िया लगा था ये लाइट। इनको सबको बहुत खुशी हुई लाइट आई, जो अंधेरे में ही रहते थे ये सब। तो पहले आपका दिन कैसे होता था और अब कैसा दिन है? अब जो है कुछ सुकून है, वो लाइट से चमकत तो है कि कीड़ा मकोड़ा कोई आ रहा है तो उजेरे में बहुत अच्छे हम लोग कट रही, रात भर जलता है उजेरा। मिस्टर दीपू, कंग्रेचुलेशंस। कुछ 30 साल के बाद आपके घर में बत्ती आ गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि और ऐसी कमाल की चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहें। Along with Deepu's family, 90 other homes in the village also have access to power from TPRMG. I met the Sarpanch of a nearby village to understand TPRMG's reach. Utkarsh, first of all, I want to thank you for taking out time and मैंने देखा है कितनी कमाल की चीज़ें आप अपनी wonderful village में कर रहे हैं। मैं जानना चाहता था, before we talk about the solar aspect of the village, मैं जानना चाहता था कि previously क्या setup था या क्या situation था when it came to electricity in each house in the village? Right. So I think if we go 10 years back or 15 years back, the problem was of inconsistent power supply. So basically, the villages were not up to the mark in terms of electricity supply. But in last 5 years or 10 years, you can say 8 years, things have improved. We are getting a good power supply now. And thanks to Tata Power also, they have installed a very good solar capacity here, which is helping a lot of commercial users here. So to give them like uninterrupted power supply. तो एक तो मुझे कमाल की बात ये समझ आई कि basically you have electricity but it's inconsistent like across the board. When you want to build industry, when you want to build electricity for say schools, then you need consistent supply. Right. मुझे लग रहा है कि this is the beginning of things that are going to be incredible and amazing. Right. You know, and it's starting now. But what exactly were the challenges that Tata Power Renewable Microgrid were able to tackle in Bijwa? And now it's exciting for me because I'm going to meet the two people who from the government side have been responsible for bringing clean, green energy to wonderful villages. Mr. Chaurasia, Chandan, thanks so much for chatting with me. तो Chaurasia साहब बताइए ये हुआ कैसे, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 10 लाभार्थियों का चयन किया गया। टाटा पावर के माध्यम से हमको जो है वहाँ पे सोलर प्लांट की स्थापना कराई गई है, जिसके कारण से हम वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के रूप में उस गांव को, पूरे गांव को विद्युतीकरण हम कर सके हैं। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। मतलब ये बहुत ही कमाल का काम है और आई वाज रियली हैप्पी। तो ये बताइए चंदन कि इसको सेटअप करने में क्या क्या चैलेंजेस थे या कैसी रही ये जर्नी, ये माइक्रो ग्रिड्स सेटअप करने की जर्नी? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015, जो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि किस तरीके से हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और उसी के तहत जो है सोलर पावर एज वेल एज जो है अगर आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी और सोर्सेज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। हम लोगों ने जो है पूरे गांव को, एंटायर गांव को CCTV से जो है पूरा कनेक्ट कर दिया। वो चूँकि मेन रोड पे है, वहाँ से आना जाना, पहले काफ़ी चोरियाँ होती थी, क्राइम्स होते थे। ये जो स्कीम है इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया इस गांव में, और CCTVs पावर्ड बाय ग्रीन एनर्जी। ग्रीन क्या बात। टाटा ने काफ़ी अधिक, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों की बातों को भी समझा, और सोलर पावर पे स्विच ओवर करते ही लगभग 40% कॉस्ट सेविंग होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ पार्ट यह है कि हम लोग जो है लोगों को जो है इनकेस अगर पावर कट होता है तो सोलर पावर के थ्रू जो है कनेक्शन दिए रहते हैं। तो शाम को बच्चे जो है रात में, इवन हम लोग रैंडमली एक बार गए थे तो 9:30 बजे के आसपास पावर कट था, और वहाँ जाने के बाद ये देखा कि बच्चे जो है ट्यूबलाइट में जो है वो पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा कैसे क्या, तो एक ट्यूबलाइट और एक पंखा जो है उसमें चल रहा। तो बेसिक जो चीज़ें थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक गरीब परिवार के लिए उतना चाहिए होता, वो चीज़ें चलती हुई देखती हुई मिली। माय गॉड, तो ये तो बिगिनिंग है। बहुत ही कमाल के सपने मुझे देखने को दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा चलते रहा तो इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री विल हैव अ ग्रीन वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल विलेज टू लिव इन, और वहाँ पे पढ़ाई हो और ऑटोमेटिकली उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी भी बढ़ती रही। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट वर्क।
And to further lighten up the lives of people, TPRMG started a customer awareness and new connection campaign to electrify villages in UP. A van goes through districts in the state to teach people about the advantages of adopting green and sustainable sources of energy. Now let's go meet another beneficiary who has been using green energy to irrigate his fields. Microgrid set up by TPRMG enabled Dharamchand to avail of economic electric supply that brought green irrigation to this region. Financial stimuli were extended to him through social organizations, whereas TPRMG provided green power from the microgrids to run a 3 horsepower, 3-phase monoblock pump to suck groundwater. Dharamchand saves about 35% of his costs using solarized water pump. And I'm really curious to know how he managed to replace polluting diesel engines that are causing a lot of pollution and replacing that with non-polluting solar pumps. It's quite an exciting journey. Come on. तो धर्मचंद जी, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबको अब मालूम है कि आपके पास एक कमाल का सोलर पंप है, तो उसकी वजह से सबको पानी मिल रहा है। तो ये आप पहले इससे कौन सा पंप यूज़ करते थे और आप किस चीज़ की वजह से सोलर पे आ गए? सर, हम डीजल पंप इस्तेमाल करते थे, उसको लाने ले जाने में दिक्कत हुआ करती थी। डीजल लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, इसीलिए हमने सोलर पंप लगवाया। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जाइए अपना ताला खोलिए, स्विच ऑन कीजिए, काम चालू। अब इसमें लाइट भी पूरा दिन नहीं जाती है। मतलब आपका दिन का 1.5-2 घंटे का काम कम हो गया। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? आपने किस दिन डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, मेरे को और डीजल यूज़ नहीं करना और मुझे सोलर चाहिए? अब सोलर पंप वालों ने कहा कि ऐसा करिए कि आप पंप लगवा लीजिए, डीजल ले जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। जी। तो हमने सोचा कि सही बता रहे हैं हम उसको। और अब कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सभी। पास पड़ोस खेत वाले भी सिंचाई करते हैं जी, जो कुछ 10-20 खेत वाले हैं आसपास के, सभी को पानी मिलता है। Dharamchand irrigated his field and provided irrigation water as a service, also known as WAS, to the nearby farmers through a kilometer-long irrigation pipeline. That was truly inspirational, and I hope this green journey continues across our country. India has nearly 9 crore farmers. Imagine if every farmer in this country ran their 5 kilowatt irrigation pumps on solar power for 100 days in a year. Now, if that were ever to happen, we would approximately save 9.9 lakh metric tons of CO2 emissions annually. I'm super excited and curious about my last destination on the route. So how does a solar microgrid aid in upscaling rural women? I'm today at Usha Tailoring Center, and this center was electrified by green electricity from a microgrid to run electric sewing machines. Now what happened was that TPRMG collaborated with a sewing school to operate a training and production center in this village. This is a center set up and run purely on solar power, and it helps in empowering ladies. Let me tell you the whole story. It's super exciting. Come on. नमस्ते रचना दीदी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। रचना दीदी, मैं इतना खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ऊषा सिलाई स्कूल में हूँ जो रचना दीदी चलाती हैं। कमाल के कपड़े बनाती भी हैं और एक टीचर भी हैं जहाँ पे आपने इतने सारे लोगों को, इन सारी लड़कियों को सिखाया है कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ सूट्स बन रही हैं, किसी बच्चे के आई थिंक स्कूल के यूनिफॉर्म बन रहे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म भी बन रहे हैं, सूट भी बन रहे हैं और पेटीकोट ब्लाउज भी बन रहे हैं। जो कमाल की बात यहाँ पे है कि ये जो पूरा यूनिट है, ये यूनिट सोलर पावर पे चल रहा है और उसका बेनिफिट ये है कि इनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सब लाइट से चलती हैं सारी मशीनें। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप इससे कैसे जुड़े? वही आपको बताने जा रहे हैं।
उषा वाले सर और टाटा वाले सर और सर्वोदय आश्रम वाले भी सर, ये जिससे कि गांव में गए तो इन्होंने पूछा कि मैडम आप क्या सिलाई सीखेंगे? तो हमने बोला कि सर हम खुद ही करते हैं। बोले 15 महिलाओं को जैसे कि आप ढूंढो, हम ट्रेनिंग जो है सबको दिलवाएंगे। तो सर उसी तरीके से हमने 15 क्या कम से कम 25-30 महिलाओं की यहाँ पे मीटिंग की जी। उषा वाले सर्वोदय आश्रम वाले सर ने जो इन्होंने चयन किया, 15 लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग दी। अच्छा। हाँ, कुछ महिलाएं इतनी फास्ट थी, उन्हें 15 दिन में मतलब बहुत ज़्यादा ही कपड़े आ गए। 15 दिन में बहुत मुश्किल है जो सिलाई सीखना। आपने कुछ साथियों के बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं? बड़ी मुश्किल से अपने घर से निकली हैं, आज यहाँ पे आई हैं, तो अपने घर पर बैठकर सिलाई करती हैं ऑर्डर वर्क का। और सर ये हमारी दादी जी हैं, यही आवास में ही रहती हैं। तो इनका था, इनकी तो इस उम्र में तो सीखने में बहुत मुश्किल बात है सर जी। हाँ, सर ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन इनका इतना इंटरेस्ट था कि हम मेहनत करें और आगे बढ़ें। इससे कितनी हेल्प हुई है फाइनेंशियली? तो यहाँ पे हम बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, तो उसमें से हमारा सर्वोदय आश्रम भी हेल्प कर रहा है, हेल्प टाटा से भी मिल रहा है। ऑर्डर वर्क का जो हमें मिला है वो उसमें से हम कमा लेते हैं, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपए तो बिल्कुल ना करें तब भी हमारा हो जाता है सर। सुपर्ब। ऐसे कि अपने हस्बैंड लोगों से पैसे भी नहीं मांगना पड़ता है इन लोगों को। करेक्ट। हाँ, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हो चुका हूँ और इतनी कमाल की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप चढ़ते रहिए एंड होपफुली यहाँ पे यूनिट बनते रहें बहुत बड़े और आपकी फैक्ट्रियाँ खुलें। दादी जी थैंक यू, प्रणाम। ओके, थैंक्स, बाय। नमस्ते। It's interesting to know, the power of electricity can truly change the power you hold in society, like these remarkable women here. But the journey of solar microgrids to change lives has only just begun. Now it's time for me to head 130 kilometers ahead to meet Sayub, a young village entrepreneur who set up a marvelous green business. I'm excited. चाचा जी घर जा रहे हैं आप? कितने गाय भैंस हैं आपके? 2-3 तो कितना 10-12 किलो खा लेते हैं? 15 किलो, अब तो बहुत चारा है दिन का। हाँ ठीक है, प्रणाम। So here is a wonderful story of reverse migration. Soyab during the COVID-19 pandemic returned to his village and set up an RO plant for himself and then further expanded to an ice cream factory. Inadvertently, therefore, scoring happy, amazing green jobs not only for himself but also for the people working around him and a stable income. कमाल की बात यह है कि आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सऊदी में थे, वहाँ सऊदी अरब में जी, तो वहाँ पे आप एक अकाउंटेंट थे? एज ए अकाउंटेंट मतलब काम किया है दुकान के ऊपर जी जी। फिर कोविड के दौरान तो वैसे भी बहुत माइग्रेशन, सारी चीज़ें मतलब जो है दुकान बंद हो गई वगैरह, और जो कफील के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, काम मतलब कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ आए तो माहौल पहले से ही बहुत ख़राब हुआ था। सारी चीज़ें मतलब कोविड के बाद जब ओपन हुई, मार्केटें ओपन हुई, सारी चीज़ें देखने के बाद जब हमें कुछ एहसास हुआ कि मतलब कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो हमने सोचा कि मतलब कोई बिज़नेस डालते हैं, खुद का बिज़नेस जिसके हम खुद मालिक बने और 4 लोगों को रोज़गार दे सकें। सुपर। अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूँ तो पहले तो आपने शुरुआत करी एक वाटर प्लांट के साथ और फिर वहाँ से आपने अपनी एक आइसक्रीम की कंपनी शुरू करी। जी सर, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जी, थोड़ी खुशी भी मिलती है सबको। वाटर प्लांट से जब मैंने मतलब जो है पहले सेटअप लगाया तो उसी के साथ मतलब मैंने उसके साथ नेगेटिव पॉइंट ये नोट किया कि मेरा वाटर प्लांट मतलब अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा था उस टाइम। उसी के साथ साथ मैंने एक आइसक्रीम फैक्ट्री वहीं पर डाल दी। उसके साथ साथ जब आइसक्रीम फैक्ट्री डाली तो उसको चलाने के लिए सर मतलब लाइट कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। 1-2 बार मेरा कनेक्शन भी रिजेक्ट हुआ। उस टाइम मतलब कोविड के टाइम पर सर अधिकारी लोग से मिलना नहीं होता था, इसलिए मेरा कनेक्शन भी नहीं हो पाया। तो मैं जनरेटर से आप मतलब आइसक्रीम फैक्ट्री चलाने लगा। कितना डीजल यूज़ कर रहे थे आप, क्योंकि महंगा होता है? यानी 10 से 12 लीटर सर एक दिन में मतलब खपत हो जाती थी।
उसी के साथ मैंने सोचा कि लाइट को मतलब जो है अगर लाइट की व्यवस्था कहीं से हो जाए तो मतलब मेरे थोड़े पैसे बचेंगे। तो इसी प्लान को लेकर मैं टाटा वालों के पास गया, टाटा वालों से मुलाकात की, जो टाटा के जो सोलर प्लांट लगे हुए होते हैं गाँव में, तो हमने उनसे बात की। तो टाटा प्लांट के साथ मतलब जो है हमें बिजली की व्यवस्था तो पूरी तरीके से मिल गई। सोलर से हमें कंटिन्यू मतलब जो लाइट 15 से 16 घंटे के आसपास मिल जाती है सर। सुबह 7 बजे से हमको लाइट चाहिए 9-10 बजे रात तक, वो बिल्कुल आसानी से सोलर प्लांट ने हमें उपलब्ध करा दी। सर मेरा एक मेन मोटिव था कि मतलब जो गाँव के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम किसी तरीके से रोजगार से लगाएं। तो मैं तो आपसे इतना इम्प्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोविड में आना, अपनी एक फैक्ट्री शुरू करना, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर, एंड आई होप कि आपकी फैक्ट्री हर जगह फैले जी, और आप और रोजगारी दें लोगों को एंड सोलर पावर बढ़ाएं। जरूर। आप इतना मतलब सर हो गया तो हमारी आइसक्रीम भी एक टेस्ट करके मैं तो उसी के लिए रुका था सर, उसी के लिए आपको पटा रहा हूँ। आई एम ट्रूली मूव्ड बाय द एस्पिरेशन ऑफ सोयाब, who gave up the city life and has made a sustainable business for himself that has low impact on the environment and has helped not only him but his entire community. Now that's the spirit. My journey through rural Uttar Pradesh has given me a glimpse of how microgrids can truly be the light of change even in the remotest of villages. And I am truly hopeful and confident that installing microgrids will open the doors to the future where the power of the sun lights up the lives of rural women, young entrepreneurs and communities.